Good morning, students. We are here on lecture number 4, that is chemical properties of aldehyde and ketone. Many chemical properties of aldehyde and ketones we had already discussed in lecture 3. Here again we are on the same portion, but for with another properties. But I have some properties, some preparations of aldehydes that we had missed in our last lecture, and those are very important. That's why I'm sharing here again those preparations. These preparations are related with Ettard reaction, or is like this. uh, Strong oxidizing agent oxidize toluene and its derivative to benzoic acid. It means the alkyl group which is present over benzene ring will turn into benzaldehyde if it is primary or secondary. In place of CH3, if it is C2H5 or any secondary portion, it may convert into benzaldehyde. It is very easy mechanism, but it is not required for you, and that's why I'm not sharing the mechanism of it with you, because it is not required, right? But remember, for oxidation of that alkyl group, one hydrogen must be present at carbon, right? So if it is CH2, whatever are different टाइप्स में जो ग्रुप्स हैं वो पॉसिबल हैं, बट रिमेंबर अगर वहाँ पर टर्सरी ग्रुप हो जाएगा, लाइक अगर मैं वहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, सो इफ इट इज लाइक दैट CH2 CH3 होगा तो भी सेम रिएक्शन होगा, राइट? और अगर यहाँ पे सेकेंडरी ग्रुप भी हो जाए, जैसे सेकेंडरी या इस तरह का ग्रुप हो जाए CH3 C, लाइक अब जैसे ये CH3 ये नहीं हो सकते, CH3 ये भी हो सकता है ना, फिर लेकिन ये नहीं हो सकता, टर्सरी वाला जो ग्रुप है ना वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। वैसे तो क्वाटरनरी हो जाएगा CH3 और ऊपर CH3, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? बिकॉज इस कारण पर एक भी हाइड्रोजन नहीं, दिस हाइड्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट in mechanism, but it is mechanism is not important to you on any platform. That's why I'm not wasting your time to explain the mechanism of that, right? So it is a very simple process. So this is Ettard reaction. Again, one more reaction which is with CrO3 in presence of anhydride is given over there, which is also the same product we would get in the reaction, बट हेयर CrO3 मस्ट बी एनहाइड्रस, और इसीलिए एनहाइड्राइड का यूज भी किया जाता है, तो CrO3 एनहाइड्रस होना चाहिए। मैकेनिज्म काफी कुछ मिलती जुलती है, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट वाई आई एम नॉट शेयरिंग मैकेनिज्म ऑफ इट विद यू, राइट? सो रिमेंबर दीज बोथ द प्रोसेसेस, very important processes they are, and we forget to discuss these in last class we missed this portion, that's why I'm sharing, I shared it with you again, right? Now here we are on I think we had discussed about acetyl and different part, right? Now we are on the addition of alcohols we had discussed about, and now we are, this is very important part for us, addition of ammonia and ammonia derivatives. अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स क्या हो सकते हैं, इस चीज को पहले समझिए। NH2 और लास्ट में Z, अब Z की जगह पर अगर H हो जाए, you can see here if in place of Z there is H, it will be ammonia simply. If it is R, any alkyl group, it will be amine. If it is OH, it will be hydroxylamine. If it is NH2 in place of Z, it will be hydrazine. If it is NH and the ring, phenyl hydrazine. If it is 2NO2 group is ortho and para position, 2,4-dinitrophenyl hydrazine and semicarbazide.
right? So these all are ammonia and ammonia derivative. And what happened when these react with carbonyl group or aldehyde and ketone? Initially they react in presence of acidic, mild acidic condition, right? And what happened? The product, first we must know what will be the product. तो कुछ भी नहीं करना है, एक ऑक्सीजन निकल जाएगा और इस नाइट्रोजन पे जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, बाकी सब एज इट इज रहेगा. इसके बारे में आई विल शेयर मैकेनिज्म विद यू, बट रिमेंबर हाउ कुड वी रिमेंबर द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. You can see here easily you can understand what is going on in it, right? If for example if it is ammonia तो क्या बन जाएगा? That is C double bond NH, it is called imine. If it is alkyl group it will be substituted imine और इसे Schiff's base भी कहते हैं, right? अगर यहाँ पर OH होता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन होता है, सो दिस कंपाउंड विल बी ऑक्सिम, मतलब N और यहाँ OH बचा रहेगा. सो दैट कंपाउंड C डबल बॉन्ड N और OH बचा रहेगा, हम उसे ऑक्सिम कहेंगे. इफ इट इज NH2 इन प्लेस ऑफ Z तो यहाँ पर भी NH2 रहेगा. दिस इज हाइड्राजीन, तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी हाइड्राजोन. फिनाइल हाइड्राजीन होगा तो फिनाइल हाइड्राजोन. 2,4-dinitrophenyl hydrazone, 2,4-dinitrophenyl hydrazone. This 2,4-DNP test is Brady's test, it is termed as, and it is very important for identification of aldehyde and ketones. If it gives turn various color, if it gives brownish color with any compound, give brownish color with 2,4-DNP, it means that compound must have carbonyl group. वेरी इंपॉर्टेंट इट इज ब्रैडीज टेस्ट. ये अपना कलर ब्राउनिश के अलावा भी अलग अलग कलर हो सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट मस्ट चेंज कलर. अगर वो कलर चेंज करता है तो डेफिनेटली जो है कार्बोनिल कार्बन होगा. दिस करेक्ट टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन C डबल बॉन्ड O की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेस्ट का यूज किया जाता है. सो DNP 2,4-DNP it is called, and Brady's test also termed as. One more important thing is this: if in place of Z NH C double bond O NH2, तो that will be semi carbazide, और in that case जो है वो N जो है उससे जुड़ जाएगा और बाकी पोर्शन एज इट इज रहेगा. Z की जगह पर जो है वो उसमें कोई चेंज तो आता नहीं, केवल H2 निकलता है. सो सेमी कार्बेजोन बनता है, राइट? सो दीज आर डेरिवेटिव. व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, उनका कंडीशंस भी आपको गिवन है. लेट वी डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. वेरी सिंपल मैकेनिज्म है इस रिएक्शन की. वैसे थोड़े से वहां पर दिया हुआ है, लेकिन मैं एक बार और आपसे शेयर करना चाहता हूँ. So for example, it is any alkyl group, any aldehyde. As we know, aldehyde की reactivity ज़्यादा होती है as compared to ketone. और when any like कोई भी आप ले लीजिए, NH2OH हो या कोई भी है, तो this nitrogen has lone pair electron. और acidic conditions are very important for this reaction because this NH2 is not a good nucleophile. ठीक है, लोन पेयर है, उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल फिर भी नहीं होता है क्योंकि इसके साथ OH होता है और अदर कंडीशंस भी हो सकती हैं, बट H+ की कंडीशन में रिएक्शन बहुत अच्छा होता है. व्हाट हैपन इनिशियली, दिस ऑक्सीजन will move toward for hydrogen. In that case, this bond shift over there and this N will attack on this carbon. So what product we would get are C and OH. और यहाँ पर H तो है ही और साथ में क्या हो जाएगा, NH2OH प्लस. आफ्टरवर्ड्स बिकॉज यहाँ हाइड्रोजन को यू कैन सी कि हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन 1 OH और एक ये बॉन्ड तो 4, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और प्लस नाइट्रोजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेटिंग प्लस चार्ज अगेन बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इसलिए हाइड्रोजन यहाँ से लूज कर देगा. सो व्हाट प्रोडक्ट वी वुड गेट, COH
right? COH and H and NH, एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, H plus NHOH. Now the competition occurs between OH and NH. So in that case NH is better nucleophile as compared to OH. याद कीजिए मैंने बताया था कि while moving along the period left to right, basic nature is directly proportional to nucleophilicity. तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिक नेचर NH माइनस का ज़्यादा होता है, NH2 माइनस का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू OH माइनस, तो उसी तरह न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा होती है. सो अगेन व्हाट इट डू, अगेन ये क्या करेगा, फिर से एसिडिक कंडीशंस इन्वॉल्व होंगी और एसिडिक कंडीशन पर ऑक्सीजन भी जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, RC एंड इट विल बी OH2 प्लस एंड इट इज NH. देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ ये जरूर बताना चाहता हूँ कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है. तो प्रोसेस क्या होती है कि ऐसा नाइट्रोजन, इवन नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन को गेन कर सकता है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि NH आसानी से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ऑब्वियसली बुरा लीविंग ग्रुप की तरह भी बिहेव कर सकता है, और ये ऑब्वियसली बुरा लीविंग ग्रुप होता है, उतना स्टेबल नहीं होता है, तो इसीलिए H2O के मुकाबले NH3 उतना अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता. आप जानते हैं H2O ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू NH3 या NH2OH. तो ये इक्विलिब्रियम में होता है और रिएक्शन अगर आगे नहीं बढ़े तो बैक साइड भी जा सकता है. तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ रखता है और ये बाहर हो जाता है. सो अगला स्टेप जो हमें देखने को मिलता है दैट इज RC, और यहाँ से ये बाहर निकल गया ऑब्वियसली. तो यहाँ पर क्या हो गया, जो इस पर एक हाइड्रोजन पहले से है, इसका हाइड्रोजन हम उसे नहीं भूल सकते. सो दिस विल बी डबल बॉन्ड NHOH and the plus charge over there. Afterwards अगर आप देखें तो इसमें से ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन निकल जाएगा जैसे कि पहले भी हुआ था. तो RCH डबल बॉन्ड NOH will be your last product. So this is called ऑक्सिम. ये ऑक्सिम कहलाएगा, राइट. और भी अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं. अगर मैं अपन फिर से याद करने की कोशिश करते हैं, अब इसमें अगर हम, अब मैं पूरे रिएक्शन लिखूंगा, राइट. आप इसे पूरा देख सकते हैं, वीडियो में है, आप बार बार बैक करके भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो मैं इसको हटा रहा हूं. ओके, नाउ अगर आप बाकी के लिए भी देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि नहीं भाई चलिए हम देखते हैं अमोनिया के लिए, तो अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूं. मैंने मैकेनिज्म आपको बता दी है. डायरेक्ट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, मतलब बेटर है कि मैं इसे ऐसा लिखूं, हमेशा अमोनिया के डेरिवेटिव हैं, तो आप इसे ऐसा लिखिए. इधर H2N ले लीजिए और इधर जो भी है दूसरा जोड़ लेते हैं. चलिए एल्काइल ग्रुप ऐड कर देते हैं. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसे डायरेक्ट H2O यहाँ से निकाल दीजिए और आपका प्रोडक्ट H डबल बॉन्ड से N को ऐड कर दीजिए. सो RH एंड डबल बॉन्ड NRN, दिस इज आइमाइन. ये आइमाइन होता है और इसे शिफ्स बेस भी कहा जाता है. ऐसे ही और अदर केसेस में आप फिनाइल हाइड्राजीन को मैं आप 2,4-DNP ले लेते हैं, है ना, 2,4-DNP ले लेते हैं. सो दैट इज H2N एंड NH, फिर बेंजीन रिंग NO2, 2,4-DNP इज देयर, और ये आपस में रिएक्शन करेंगे. H2O यहाँ से निकल जाएगा जैसे कि मैंने ऊपर वाले स्टेज में निकाला है, वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा. सो दिस विल बी RCH, राइट, एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड N एंड NH एंड द रिंग, और रिंग पर 2 NO2 ग्रुप. Isn't it? So this will be 2,4-dinitrophenyl hydrazone. This is hydrazine, 2,4-dinitrophenyl hydrazine. So this will be 2,4-dinitrophenyl hydrazine, hydrazone, right.
तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। फिर एक सेमी कार्बेजाइड है, चलिए उसको भी क्यों छोड़ दें, C डबल बॉन्ड OH, अगेन मुझे ऐसा ही लिखना चाहिए, CH डबल बॉन्ड O एंड NH2 NH, C डबल बॉन्ड O NH2, राइट। सो इन दैट केस ये H2O यहाँ से निकल जाएगा। रिमेंबर जिस नाइट्रोजन का लोन पेयर CO के साथ कॉन्जुगेशन में होता है वो यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि CO के साथ वो कॉन्जुगेशन में, तो पार्टिसिपेट वो करता है जो कॉन्जुगेशन में नहीं होता है। ओके, सो RCH डबल बॉन्ड N NH, C डबल बॉन्ड O NH2, जो जस्ट कॉल्ड सेमी कार्बेजोन, एक सेमी कार्बेजाइड कहलाता है ये, सेमी कार्बेजोन, राइट। तो इस तरीके से जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव हैं सबके लिए ये रिएक्शन दिया जा सकता है एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो यू कैन आई थिंक वेरी मच अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज इट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिडक्शन रिएक्शन। सो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दो तरीके से रिड्यूस किए जाते हैं। पहला लेवल होता है कि आप LiAlH4 या NaBH4 से रिड्यूस करते हैं, दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। प्राइमरी अल्कोहल होते हैं तो वो एल्डिहाइड होते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कीटोन्स होते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट अनदर टाइप ऑफ रिडक्शन इज रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। These are the processes where in the reaction हाइड्रोजन काफी अच्छे कॉन्सेंट्रेशन में इवॉल्व होता है और डबल बॉन्ड पर तब तक जुड़ते रहता है जब तक कि ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलता। यानी C डबल बॉन्ड O को हाइड्रोजन का जो यहाँ प्रेशर जनरेट होता है ये पूरी तरह से ब्रेक करता है। तो इसमें कोई मैकेनिज्म खास नहीं है, सिंपल बात है, Zn और HCl हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, NH2 और KOH हाईली रिएक्टिव होते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल में, है ना, हाईली रिएक्टिव होते हैं और इतना हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ऑक्सीजन को बाहर कर देते हैं। इट इज ड्यू टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, रिमेंबर, राइट। सो जब द फर्स्ट वन जहां ZnHgHCl का यूज होता है दैट इज कॉल्ड क्लीमेंशन रिडक्शन, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप को डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर सकते हैं CH2। और दो सेकेंड कंडीशन में NH2 तो वहां पर भी आप देखें हाइड्राजीन फिर से वही बना और KOH ने फिर उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किया। लेकिन हाइड्रोलाइसिस ना होकर यहाँ पर द प्रोसेस इज कि एक इसमें थोड़ी सी मैकेनिज्म जरूर होती है बट उसकी आपको अभी हाल में जरूरत नहीं है। सो रिमेंबर कि वहां से हाइड्रोजन जो है वो इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन एक्टिव होता है और जो डबल बॉन्ड है उसे पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया जाता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑल्सो, right? So the first reaction is Clemenson reduction and the second reaction is Wolff-Kishner reduction। तो दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये काफ़ी कई स्टेप्स का मैकेनिज्म है, ठीक है, और डेफिनेटली आई शेयर विद यू गाइस इसका मैकेनिज्म बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट in for competition specifically for JEE but not here, right? I'll share the mechanism of this reaction कुछ समय बाद जब मुझे समय मिलेगा, so I will share the mechanism but it is not given in your book and I'm basically concentrating in this part for NCERT जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक बात और कि अभी हाल में इस पर मैकेनिज्म पर इसके मैकेनिज्म पर बेस्ड क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं, काफ़ी समय से नहीं आ रहे हैं। सो मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ बट इफ़ एनीवन वांट्स यू मे आस्क, ठीक है, मुझे आप बोलेंगे सो आई विल शेयर दिस विद यू। ओके, नाउ सो दिस इज दीज टू रिएक्शंस। दिस इज फर्स्ट इज रिडक्शन ऑफ अल्कोहल जो कि हम पहले से ही करते आ रहे हैं बाय NaBH4 LiLH4 एंड दिस इज रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, रिडक्शन टू अल्कोहल एंड रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। सो फॉर रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन वी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट जो है वो क्लीमेंशन रिडक्शन। और मैं एक जनरल एग्जांपल, क्योंकि उसमें जनरल एग्जांपल नहीं है तो मैं एक जनरल एग्जांपल से आपसे शेयर और कर देता हूँ एक बार उनके रिएक्शन, तो आपको शायद बेहतर क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ओके, और इसका रिडक्शन मैंने ZnHg और HCl से करा दिया।
सो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरा बॉन्ड हट जाएगा और कार्बन की वैलेंसी बस मैनेज कर दीजिए, CH3 CH2 CH3, दैट्स इट, दिस इज योर प्रोडक्ट, राइट। इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। और जब आसानी से हमारा काम हो जा रहा है तो क्यों हम डिफिकल्ट पोर्शन के लिए जाएं, राइट। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, Zn Hg HCl, it will convert into cyclohexene, whatever it is. If it is CHO, Zn Hg HCl, it will convert into CH3, right. If it is benzene, will convert into toluene. ऐसे ही वॉल्फ केस्नर सेम प्रोसेस, बट थोड़ा सा डिफरेंस कब आता है, मान लीजिए एक रिएक्शन में शेयर कर सकता हूं कि आपको यहाँ CHO लिया हुआ है और यहाँ पर आपने OH लिया हुआ है, राइट। अब इस कंडीशन में आप दोनों में से, वॉल्फ केस्नर और क्लीमेंशन में से कौन सा यूज करना चाहेंगे। तो प्रॉब्लम क्या होती है, बेंजीन रिंग नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो OH है ये सेंसिटिव होता है एसिडिक कंडीशन, आपने देखा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है एसिडिक कंडीशंस में ही होता है, राइट। तो ये OH जो है वो सेंसिटिव होता है एसिडिक कंडीशंस के लिए, राइट। तो इसलिए क्या होता है कि जब ऐसी कंडीशंस होती हैं तब हम प्रेफर करते हैं वॉल्फ केस्नर, क्योंकि वॉल्फ केस्नर जो है वो बाकी इसका इन कंडीशंस में भी वॉल्फ केस्नर यूज हो सकता है, लेकिन इन कंडीशन में दोनों ही यूज हो सकते हैं। बट ऐसी सिचुएशन में वॉल्फ केस्नर प्रेफर किया जा सकता है, क्योंकि उस कंडीशन में बेसिक सिचुएशंस होती हैं और बेसिक सिचुएशन में OH को कोई भी नुकसान नहीं होता। तो अल्टीमेटली आप इस तरीके के रिएक्शन का यूज करके एल्डिहाइड से आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसे CH3OH में, राइट। तो इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, बाकी इट इज वेरी मच क्लियर, वेरी इजी कि आप आसानी से कन्वर्ट कर दीजिए आप एल्डिहाइड को हाइड्रोकार्बन पार्ट में, या कोई एल्डिहाइड पार्ट है तो उसे एल्काइल पार्ट में, राइट, विद द हेल्प ऑफ दीज टू। दिस इज वेरी P+HI भी इसी तरह के रिएक्शन शो करता है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, रिमेंबर। तो P+HI भी ऐसे ही रिएक्शन देता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दैट रिडक्शन प्रोसेसेस एंड वी आर नाउ ऑन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन of aldehyde and ketone. This is very very important part, very important it is, ठीक है। Generally as we had already discussed about कि एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। हमने ये भी देखा प्राइमरी अल्कोहल जो है आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते थे, बट सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होने के बाद रुक जाते हैं, वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, राइट। तो पहली बात तो ये कि एल्डिहाइड आर एल्डिहाइड्स का जो नेचर होता है वो ऑक्सीडाइज होने का ज्यादा होता है, कीटोन का ऑक्सीडाइज होने का कम होता है, इसलिए एल्डिहाइड हर तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, राइट। आई शेयर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमने यहाँ भी शेयर किया, लाइक नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमिक एसिड यानी CrO3 को जब हम वाटर में डालते हैं दैट विल फॉर्म क्रोमिक एसिड, दे ऑल ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड इनटू they are strong oxidizing agent, तो वहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, they oxidize aldehyde into carboxylic acid। but Tollens reagent, Fehling's reagent जैसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। कीटोन्स जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होते, इवन स्ट्रॉन्ग से भी नहीं होते। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जब आप हीटिंग करते हैं तब कीटोन ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, और कीटोन ऑक्सीडाइज होने के साथ साथ कीटोन बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं। इसे पोपॉप्स रूल के बेसिस पर ज्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है कि किस तरीके से नया प्रोडक्ट बनेगा जब आप कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। इस कंडीशन में अगर आपने इसको KMnO4 के साथ इसे हीट कर दिया तो इस कंडीशन में इट विल कन्वर्ट इनटू, तो इसमें क्या होगा, एक बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा।
तो ऐसी कंडीशन में क्या बन जाएगा, एक कार्बन, और जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन का एसिड बन जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, KMnO4 और K2Cr2O7 की प्रेजेंस में कभी भी फॉर्मिक एसिड नहीं बनता। फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और CO2H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक्चुअली KMnO4 में 2 स्टेप होते हैं, H+ और H2, और उनके साथ हीटिंग की जाती है, राइट। यहां तो बहुत क्लियर है, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जैसे मान लीजिए CH3CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। तो इस कंडीशन में जब आप K2Cr2O7 ले रहे होते हैं और साथ में आपने H+H2 आपको लेना ही होता है। अगर आपने H+H2 नहीं लिया तो ध्यान दीजिए KMnO4 और K2Cr2O7 ये बेसिक कंपाउंड है, इनका बेसिक नेचर होता है, तो एसिड नहीं बनेगा, उनका सॉल्ट बनेगा, पोटेशियम सॉल्ट। जब भी इनके रिएक्शन होते हैं H+H2O लेना ही होता है, कई बार लिखा होता है, कई बार नहीं लिखा होता है ना। सो उस कंडीशन में ध्यान रखिए। अब रिएक्शन कैसे होगा, चाहे वो KMnO4 हो, चाहे K2Cr2 हो या HCrO4 हो, कोई भी रिएक्ट हो, तो उस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखें, अकॉर्डिंग टू पोपअप्स रूल जो CO ग्रुप है वो छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, ओके, और 2 कार्बन वाला एसिड बनेगा। बाकी आपको नहीं सोचना, जितने कार्बन है उतने का एसिड बना दीजिए, दोनों ही 2 कार्बन वाले हैं तो 2 कार्बन वाले एसिड बन जाएंगे। सो पोपअप्स रूल के अकॉर्डिंग द CO ग्रुप विल कम विथ स्मॉल एल्काइल ग्रुप। ये आपको जरूर समझना है। फॉर एग्जांपल यहां बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन के ऑक्सीडेशन के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। तो इसका रिएक्शन अगर हमने H2CrO4 जो कि क्रोमियम K2Cr2O7 जैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस कंडीशन में बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और इट विल गिव CH3CH2COOH प्लस CH3COOH। ओके, ऑब्वियसली यहाँ पर जरूरत नहीं है H+H2 भी, क्योंकि खुद ही एसिडिक कंडीशन प्रोड्यूस करेगा और आपको इन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आ रही है, आपके कंपाउंड को इन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज अबाउट कीटोन। तो कीटोन के साथ ये कंडीशंस होती है। ये जो टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉलरेंस टेस्ट और फैलिंग रिएजेंट टेस्ट आपको लैब में भी करना होता है। आई विल सून कम विद दोज इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर मैं यहाँ कर पाया नहीं तो क्लास में तो जो है ऑब्वियसली करूंगा ही करूंगा। बाकी आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट इट इज। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट में टॉलरेंस रिएजेंट इज एक्चुअली अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट को अमोनिया में हम डालते हैं। आपने ऑलरेडी जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़े हुए हैं, तो अब मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इसके बारे में बताने के में। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मतलब जनरली क्या होता है, AgNO3 और इसका सॉल्यूशन बनाते हैं NH4OH में, राइट। तो ये क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। सिल्वर क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि NH4OH का मेन कंपोनेंट तो NH3 ही है, तो AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। बाकी चीजें नाइट्रेट ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ NO3 माइनस होगा कि नहीं होगा, और साथ में बाहर H2O हो सकता है, उससे हमें कोई खास लेना देना नहीं है, राइट। सो इस तरीके का ये बन जाता है। तो ये जो है वो एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट की तरह होता है। और इस रिएक्शन में जब हम किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ इसको एल्डिहाइड के साथ इसे अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में Ag विल टर्न अप इनटू, यहाँ पर क्या आप समझ सकते हैं, सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, NH3 तो न्यूट्रल होता है, तो इस कंडीशन में दिस विल कन्वर्ट इनटू CH3COOH और Ag आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस रिएक्शन में आपको टॉलरेंस रिएजेंट डायरेक्ट मिल जाता है, या सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को भी हम ले सकते हैं। दोनों को जो कंपाउंड आपको गिवन होता है उसमें मिलाते हैं और उसके बाद उसे रिफ्लक्स करते हैं। रिफ्लक्स का मतलब होता है हम वाटर बाथ में काफी थोड़ी देर तक गर्म करते हैं, तो पूरा जहां पर वो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है वो पूरा सिल्वर अपीयरेंस देने लगता है। सिल्वर मिरर टेस्ट भी सिल्वर अपीयरेंस देने लगता है, तो इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट, अगर आपने कहीं AgOH का रिएक्शन देखा है तो वो भी टॉलरेंस रिएक्शन जैसा ही रिएक्शन है, टॉलरेंस रिएजेंट का ही रिएक्शन है,
AgOH का रिएक्शन देखा हो, Ag2O का रिएक्शन अगर आप देखें, वो सब टॉलेंस रिएजेंट है। लेकिन सिल्वर मिरर टेस्ट केवल एल्डिहाइड और कीटोन्स या मीथेनॉल और फॉर्मिक एसिड, एल्डिहाइड सॉरी कीटोन्स नहीं, एल्डिहाइड्स, ऑल एल्डिहाइड्स और टॉलेंस रिएजेंट के बारे में बात करें तो ये सिल्वर और टॉलेंस रिएजेंट एज वेल एज सिल्वर मिरर टेस्ट, तो ये एल्डिहाइड्स देते हैं, इस सारे एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एज वेल एज एलिफैटिक। इसके अलावा मीथेनॉल ये टेस्ट देता है और फॉर्मिक एसिड भी ये टेस्ट देता है। इसके अलावा और ये टेस्ट सिल्वर मिरर टेस्ट कोई नहीं देते, यानी Ag+ को कोई रिड्यूस नहीं करता। बाकी कुछ रिएक्शन होते हैं जहां पर Ag2O का यूज किया जाता है, AgOH का भी आपने एक बार यूज किया हुआ है, लास्ट आपके मंथली टेस्ट में मैंने एग्जांपल दिया हुआ था। वो सारे टॉलेंस टेस्ट की तरह ही होते हैं, राइट। बट सिल्वर मिरर टेस्ट जब होता है, जब Ag+ जो होता है उसका रिडक्शन होता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, राइट। सो दिस इज वन इज सिल्वर टॉलेंस टेस्ट। द अनदर इज ऑब्वियसली सॉल्ट बनता है, क्योंकि बेसिक कंडीशन है ना, तो बेसिक कंडीशन है। चलिए मैं यहाँ उसे करेक्ट भी कर देता हूँ। बेसिक कंडीशन है तो बेसिक कंडीशन में कभी भी डायरेक्ट एसिड नहीं बनेगा, है ना, सॉल्ट बनेगा। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट हम ले रहे हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो बेसिक कंडीशन है तो यहाँ क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, राइट, और सिल्वर बनेगा। ये एक टेस्ट होता है जो आइडेंटिफाई कर सकता है सारे एल्डिहाइड्स को। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट कहा जा सकता है, राइट, बिकॉज कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते हैं, सारे एल्डिहाइड्स ये टेस्ट देते हैं। इसी तरह से एक और टेस्ट होता है जिसे फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कहते हैं। फैलिंग सॉल्यूशन जनरली कॉम्बिनेशन होता है दो सॉल्यूशन का, फैलिंग ए और फैलिंग बी सॉल्यूशन। फैलिंग ए सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट, ब्लूइश कॉपर सल्फेट होता है, और फैलिंग बी में एल्कलाइन पोटेशियम टार्ट्रेट यूज किया जाता है, बराबर। सो पोटेशियम टार्ट्रेट जब आप यूज करते हैं तो उसका अपना इंपॉर्टेंस होता है। द मेन जो स्पीसीज जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है वो Cu2+ होती है। आप देख सकते हैं इट इज वेरी गुड रिएक्शन। बेसिक कंडीशंस है, RCO- बन गया और Cu2+ Cu+1 में रिड्यूस होता है और Cu2O का रेड ब्राउन PPT बनाता है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, एंड द इंपॉर्टेंट इज कि एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते हैं। मतलब एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड को सेपरेट करने के लिए टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। कीटोन्स भी ये टेस्ट नहीं देते हैं, तो कीटोन्स और एल्डिहाइड के लिए तो फिर वो एरोमेटिक वाली कंडीशन आ जाएगी। तो बेस्ट ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है एलिफैटिक और एरोमेटिक के लिए। कीटोन्स नहीं देते हैं, बट उसको सेपरेट करने के लिए बढ़िया होता है टॉलेंस टेस्ट। ओके, सो ये दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ऑल्सो इनमें क्वेश्चंस आता है हम कैसे कोई कीटोन और एल्डिहाइड को सेपरेट करेंगे, हम कैसे जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफैटिक एल्डिहाइड को सेपरेट करेंगे, मतलब बेंजिल्डिहाइड और इथेनॉल को अलग अलग कैसे करेंगे, राइट। सो इन टेस्ट का उसके लिए यूज किया, तो वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। So these are other oxidizing agent, right? So remember these reactions. Haloform reaction is also a type of oxidation reaction that we had already discussed about, but again I'm discussing again with you because it is very very important reaction. What happen in haloform reaction? होता क्या है haloform reaction में? Aldehyde और ketone, those having 3 alpha hydrogen, या सिंपली मैं ऐसा कहूं C+OCH3 अगर किसी कीटोन में ग्रुप है तो वो, या एल्डिहाइड में ये ग्रुप है तो वो ये टेस्ट दे सकते हैं। अल्कोहल में ये ग्रुप होना चाहिए तब वो ये टेस्ट दे सकते हैं। यहां आगे कुछ भी जुड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, बट ये जरूर होना चाहिए। इसके अलावा CH3 CH2OH जो है वो भी ये टेस्ट देते हैं। तो ये सारे जो हैं ये ग्रुप होने चाहिए, या तो ये ग्रुप हो अल्कोहल में तो ये ग्रुप होना चाहिए, और इथेनॉल होता ही होता है। तो ये सारे कंपाउंड जो हैं हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं।
कैसे दे सकते हैं वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। तो जब इसका रिएक्शन हेलो फॉर्म, मतलब क्लोरीन, अगर यहाँ पर क्लोरीन मैंने लिया तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, ब्रोमीन लिया तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा, और अगर मैंने यहाँ पर आयोडीन लिया तो इट विल बी आयोडोफॉर्म, राइट। सो इस रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है, I2 जो है वो इस कार्बन पर जुड़ता है। कैसे जुड़ता है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली हम जानते हैं कि आयोडीन कैसा होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होती है, बॉन्ड ऊपर की तरफ जा सकता है, और इस कंडीशन में यहाँ पर जो है कार्बन की बैलेंसी कम हो सकती है, और इसीलिए इस तरह की कंडीशंस बन सकती है, टॉटोमराइज हो सकता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है वो यहाँ शिफ्ट हो सकता है, यानी कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, CH2 डबल बॉन्ड C और ये OH और यहाँ पर CH3, कुछ ऐसी सिचुएशन की पॉसिबिलिटी होती है। मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये बनेगा, लेकिन ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, इस कार्बन पर प्लस चार्ज होता है, और उस कंडीशन में जो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये थोड़ा वीक होता है, और वहाँ से इस कार्बन के ऊपर कैसा ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है, पोलर होता है, पोलर हो जाता है, आई कैन से, राइट। मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस लेता हूँ तो शायद आपको इस जो चीज़ है मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3। तो इस कंडीशन में बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड टॉटोमेरिज उसमें होती है, इसी कारण से होती है, ये इधर शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी रहती है, इस पर माइनस चार्ज और इस पर प्लस चार्ज, तो कार्बन की वैलेंसी कम हो रही है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में भी आपने देखा है इस तरीके से ये यहाँ सपोर्ट करने के लिए बॉन्ड डालने की टेंडेंसी रखता है, और इस हाइड्रोजन को हटाने की टेंडेंसी रखता है। तो एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, और उस पोलैरिटी के कारण से ही यहाँ भी पोलैरिटी डेवलप होती है, और HI अलग हो जाता है। ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ से H प्लस निकलेगा तो HI अलग हो जाएगा और I यहाँ जुड़ जाएगा। ऐसा 3 बार होता है, बात समझ रहे हैं। इस नेचर के कारण से ऐसा 3 बार होता है। तो जो जनरल रिएक्शन है, बस मैं जनरल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि वो कैसे होता है, बहुत ज़्यादा आप उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। C डबल बॉन्ड O CH3, तो सबसे पहले 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ I2 यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और 3 हाइड्रोजन निकल जाते हैं, तो यहाँ 3HI बन जाएगा, एंड इट विल बी 3CI3 एंड C डबल बॉन्ड O CH3। आफ्टरवर्ड्स आगे क्या होगा, KOH अल्कोहलिक विल कम इन द प्ले, और यहाँ क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा। तो इस कंडीशंस में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर H जुड़ता है और यहाँ पर OK। आप कहेंगे तो इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये रिलेटिवली ये ग्रुप ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, तो इसीलिए इस तरीके से हो जाता है। आपको बन जाता है CHI3 एंड CH3 C डबल बॉन्ड OK। तो ये बन गया आपका आयोडोफॉर्म, और ये बन गया आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने कीटोन का यहाँ ऑक्सीडेशन कर दिया। एल्डिहाइड्स में केवल इथेनॉल ही है जो इस रिएक्शन को दे सकता है, बाकी और कोई इस रिएक्शन को शो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। आप और कोई एल्डिहाइड लिखिए, उसमें ऐसा नहीं होगा। 3I2 आप यहाँ ले लीजिए, तो इट विल कन्वर्ट इनटू 3CI3 C डबल बॉन्ड OH, और उसके बाद फर्दर स्टेप KOH के साथ, तो विल गिव CHI3 एंड HC डबल बॉन्ड O OK। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इट इज। कौन दे सकता है? अगर आप कहेंगे कि भाई इनका तो ठीक है, एल्कोहल कैसे दे रहा है, तो आई कैन शो यू दैट ऑल्सो हाउ इट कैन गिव। तो आप देख सकते हैं CH3। अब एल्कोहल में मैंने जब एल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात की थी, तो मैंने वहां पर भी बताया था कि Cl2 और I2 वगैरह जो होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो सबसे पहले I2 यहाँ इसे ऑक्सीडाइज करता है कीटोन में, तो 2HI यहाँ पहले निकल जाएंगे और इट विल कन्वर्ट इनटू CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अगर एल्कोहल है तो जैसे रिक्वायर्ड ग्रुप होते हैं कीटोन और एल्डिहाइड, उसमें वो कन्वर्ट होगा और उसके बाद फर्दर जो प्रोसेस हो सकता है वो प्रोसेस होगा। तो सबसे पहली चीज ये आती है, मैंने जो बाद में बात कही कि कौन से कंपाउंड्स ये टेस्ट दे सकते हैं, इस पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं।
तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. So हेलोफॉर्म टेस्ट इज ऑल्सो very very important, right? So this is all about it's not actually end of the properties of aldehyde and ketones. These are some properties. We will go ahead for some other properties in next lecture. Those properties are also important, right? So thank you for today.